آپ سب کو میرے چینل خاموش سائے میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل خاموش سائے میں نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سلسلے وار ناول فلیٹ 704۔ قسط نمبر 1، خالی فلیٹ۔ یہ کہانی میں نے خود نہیں لکھی، یہ مجھے دی گئی تھی، اور جس شخص نے دی تھی وہ آج زندہ نہیں ہے۔ یہ سب کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شروع ہوا تھا، سن 2021۔ میں اس وقت ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میرا کام تھا خالی پڑی بلڈنگز اور فلیٹس کا سیکیورٹی آڈٹ کرنا، یعنی چیک کرنا کہ وہاں کوئی غیر قانونی طور پر تو نہیں رہ رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی نقصان تو نہیں۔ عام کام تھا، بے جان دیواریں، خالی کمرے، بند کھڑکیاں، لیکن فلیٹ نمبر 704 عام نہیں تھا۔ 7ویں منزل، کارنر اپارٹمنٹ، 3 بیڈ روم، مالک دبئی میں رہتا تھا۔ فلیٹ تقریباً 1 سال سے خالی تھا، یا کم از کم کاغذوں میں خالی تھا۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب نیچے رہنے والوں نے شکایت کی۔ رات کو آوازیں آتی ہیں، فرنیچر گھسیٹنے کی آواز، کبھی کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز۔ بلڈنگ مینجمنٹ نے پہلے اسے معمول کی بات سمجھا، پر جب 3 مختلف فلیٹ سے ایک جیسی شکایت آئی تو انہوں نے ہمیں بلایا۔ میں اکیلا نہیں گیا تھا، میرے ساتھ وقاص تھا۔ وہ مجھ سے سینئر تھا، سنجیدہ آدمی، ہنسی مذاق کم کرتا تھا۔ ہم رات کے تقریباً 10 بجے بلڈنگ پہنچے، کیونکہ شکایت بھی رات کی تھی۔ لفٹ سے 7ویں فلور تک گئے۔ فلور پر غیر معمولی خاموشی تھی، وہ قسم کی خاموشی جس میں اپنی سانس بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ فلیٹ نمبر 704 کا دروازہ سامنے تھا، لاک لگا ہوا تھا۔ ہم نے ماسٹر کی سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک عجیب سی باسی بو آئی، نہ سڑی ہوئی نہ گلی ہوئی، بس بند جگہ والی ہو۔ وقاص نے اندر قدم رکھا، میں اس کے پیچھے تھا۔ ہال مکمل خالی تھا، فرش صاف تھا، دیواروں پر کچھ نہیں۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، وقاص نے آہستہ سے کہا۔ خالی فلیٹ میں بھی آوازیں سن لیتے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولا، کیونکہ میں آوازوں سے زیادہ چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ ہال کے کونے میں فرش پر ہلکی سی خراشوں کے نشان تھے، ایسے جیسے کوئی بھاری چیز گھسیٹی گئی ہو۔ یہ دیکھ، میں نے اشارہ کیا۔ وقاص جھکا۔ پرانے ہوں گے۔ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، یہ تازے ہیں۔ ہم نے پورا فلیٹ چیک کرنا شروع کیا۔ پہلا بیڈ روم خالی، دوسرا بیڈ روم خالی، کچن صاف، لیکن ماسٹر بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ کمرہ ٹھنڈا تھا، باقی فلیٹ میں گرمی تھی، لیکن اس کمرے میں درجہ حرارت واضح کم تھا۔ وقاص نے کھڑکی چیک کی، بند تھی، اے سی کا کوئی نشان نہیں۔ میں نے فرش دیکھا، وہاں بیڈ کی جگہ کے عین درمیان ہلکا سا گول نشان تھا، ایسے جیسے وہاں کچھ رکھا گیا ہو لمبے عرصے تک اور پھر ہٹایا گیا ہو۔ یہاں بیڈ تھا شاید، وقاص بولا۔ میں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ نشان بیڈ جیسا نہیں تھا، وہ زیادہ گول تھا، جیسے کوئی بڑا ڈرم رکھا ہو یا کوئی بھاری چیز۔ اچانک اوپر والی چھت سے ٹھک کی آواز آئی۔ ہم دونوں نے بیک وقت اوپر دیکھا۔ اوپر تو چھت ہے، وقاص نے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ ہم 7ویں فلور پر تھے۔ وہ صرف چھت تھی، کوئی فلیٹ نہیں۔ دوسری آواز آئی، ٹھک ٹھک، اس بار واضح، ایسا جیسے کوئی ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ وقاص کا چہرہ بدل گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے فوراً موبائل نکالا، ٹارچ آن کی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ باہر نکلے، دروازہ لاک کیا اور سیڑھیوں سے اوپر چھت کی طرف گئے۔ چھت کا دروازہ بند تھا، اندر سے لاک۔ وقاص نے مجھے دیکھا۔ چابی؟ میں نے سر ہلایا۔ ہمیں یہ چابی نہیں دی گئی تھی۔ اسی لمحے
हमारे पीछे से हल्की सी आवाज आई, लिफ्ट की डंग। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला था। 7वें फ्लोर पर, रात के 10:47, और इस फ्लोर पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर आई थी। वकास ने आहिस्ता से कहा, किसी ने नीचे से बटन दबाया होगा। मैंने लिफ्ट के अंदर जाकर पैनल देखा। 7वें फ्लोर का बटन अंदर से दबाया गया था, नीचे से नहीं। मैंने वकास की तरफ देखा। हम दोनों ने एक ही बात सोची, लेकिन किसी ने जबान पर नहीं लाई। हमने इस रात फ्लैट को क्लियर रिपोर्ट कर दिया। कोई शख्स मौजूद नहीं, कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। लेकिन जाते वक्त मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर फ्लैट 704 के दरवाजे को देखा। दरवाज़ा बंद था, मगर नीचे दरवाजे के ऊपर फर्श के दरमियान एक साया सा हिल रहा था, जैसे अंदर कोई खड़ा हो और हरकत कर रहा हो। मैंने पलक झपकी, साया गायब था। मैंने खुद को समझाना, थकन है, लेकिन असल मसला इसके बाद शुरू हुआ। अगले दिन वकास ने ऑफिस नहीं आया। फोन बंद। घर गया तो पता चला वो रात को घर पहुंचा ही नहीं था। और 2 दिन बाद पुलिस ने इसकी गाड़ी इसी बिल्डिंग की पार्किंग एरिया से बरामद की। अंदर से गाड़ी लॉक थी, चाबी अंदर थी, और पिछली सीट पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक सफेद कार्ड जिस पर स्याह मार्कर से लिखा था, शादी हो चुकी है। किस्त नंबर 2, गुमशुदगी की रिपोर्ट। वकास की गुमशुदगी पहले दिन संजीदा नहीं ली गई। वो गैर शादीशुदा था, अकेला रहता था, कभी कभार 2-3 दिन गायब रह जाता था। लेकिन इस बार फर्क था, इसका फोन मुसलसल बंद था। गाड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी मिली, और सबसे अहम बात, वो फ्लैट 704 के इंस्पेक्शन के बाद गायब हुआ था। मैंने ये बात कंपनी के मैनेजर को बताई। इसने फौरन कहा, देखो, ये सब आपस में जोड़ने की कोशिश मत करो। हम सिक्योरिटी कंपनी है, तफ्तीशी इदारा नहीं। लेकिन मैं जानता था कि ये इत्तेफाक नहीं था। मैं दोबारा गुलिस्तान जोहर गया। इस बार दिन के वक्त। बिल्डिंग का चौकीदार रशीद तकरीबन 50 साल का आदमी था। मैंने इससे सीधा सवाल किया, कल रात हमारी गाड़ी कब तक यहाँ थी? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, गाड़ी तो रात भर रही, लेकिन वो रुका। लेकिन क्या? 11:30 के बाद मैंने लिफ्ट ऊपर जाते देखी। 7वें फ्लोर। वो आहिस्ता से सर हिलाया। कोई निकला था? नहीं। लिफ्ट ऊपर गई। 5 मिनट बाद खुद नीचे आ गई, खाली। मेरे हाथ ठंडे होने लगे। सीसीटीवी है? इसने कहा है, मगर पिछले महीने से खराब है। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। मैं सीधा मैनेजमेंट ऑफिस गया, रिकॉर्ड मांगा। उन्होंने कहा कैमरे वाकई बंद थे, टेक्निकल फॉल्ट। मैंने फ्लैट 704 की चाबी मांगी। वो हिचकिचाए, मगर दे दी। मैं अकेला ऊपर गया। दिन का वक्त था, रोशनी थी, खौफ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वही बासी बू, और इस बार हॉल के दरमियान फर्श पर कुछ नया था। हल्की सी सफ़ेद लकीर, ऐसी जैसे किसी ने चाक से गोल दायरा बनाया हो और फिर आधा मिटा दिया हो। मैं झुका, उंगली से छुआ। ये चाक नहीं था, ये नमक था, बहुत बारीक, गोल दायरे की शक्ल में। मेरे जहन में फौरन सवाल आया, ये किसने बनाया? हमने कल नहीं देखा था। मैं सीधा मास्टर बेडरूम में गया। वो गोल निशान अब ज्यादा वाज़ेह था, और इसके बीच में फर्श पर हल्का सा नमी का निशान था, जैसे वहां पानी रखा गया हो या कोई चीज लीक हुई हो। मैंने मोबाइल से तस्वीरें ली। इसी लम्हे मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। नाम आया, वकास। मेरे हाथ से तकरीबन मोबाइल गिर गया। मैंने फौरन कॉल अटेंड की। हेलो वकास, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर हल्की सी सांसों की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई करीब खड़ा हो और फोन नीचे की तरफ हो। मैंने दोबारा कहा,
वकास बात करो। फिर एक जुमला आया, बहुत आहिस्ता, बहुत टूटा हुआ। शादी हो गई और कॉल कट गई। मैं चंद सेकंड वहां खड़ा रहा। मैंने फौरन दोबारा कॉल की। फोन बंद। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। इसी लम्हे मास्टर बेडरूम का दरवाजा आहिस्ता से बंद होने लगा। कोई जोर नहीं, कोई धमाका नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता। मैंने दौड़कर दरवाजा पकड़ा, बाहर निकला। पूरा फ्लैट खामोश था, लेकिन अब मुझे यकीन सा हो चुका था, ये सब नफसियाती नहीं है, ये मंसूबा बंद है। किसी ने इस फ्लैट को इस्तेमाल किया है और शायद अब भी कर रहा है। इसी शाम मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई। वकास की लाश मिल गई थी, गुलशन इकबाल के एक खाली प्लॉट से। लाश मुकम्मल सालिम थी, कोई वाज़ेह जख्म नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात लिखी थी। जिस्म में शदीद डिहाइड्रेशन, खून में सोडियम की गैरमामूली मिकदार। सोडियम, नमक। मेरे जहन में फौरन वो गोल दायरा आया। मैंने एक पुलिस अफसर से पूछा, लाश के साथ कुछ मिला? वो बोला, हाँ। जेब में एक कागज था। क्या लिखा था? चंद सेकंड खामोशी रही। फिर इसने कहा, तारीख लिखी थी और एक वक्त। कौन सी तारीख? वही तारीख, आज की, और वक्त रात 11:30, यानी अभी 3 घंटे बाकी थे। और मुझे अचानक समझ आया, ये इत्तला नहीं थी, ये दावत थी। किस्त नंबर 3, 11:30। मैंने उस रात पुलिस को कुछ नहीं बताया, ना वो कॉल, ना वो वक्त, ना वो तारीख। अगर मैं बताता तो वो मुझे रोक देते, और मुझे रोकना नहीं था, क्योंकि अब ये ज़ाती हो चुका था। वकास मेरा कोलीग नहीं था, सिर्फ वो पिछले 4 साल से मेरा पार्टनर था। हमने दर्जनों खाली बिल्डिंग्स चेक की थी, कभी डरे नहीं थे। लेकिन उस रात मैं डर नहीं रहा था, मैं गुस्से में था। रात 10:55 में बिल्डिंग के बाहर गाड़ी में बैठा था। इंजन बंद, लाइट्स बंद, पार्किंग गैर मामूली खामोश थी, और 7वें फ्लोर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी चल रही थी। फ्लैट 704 में बिजली कटी हुई थी, मेन मीटर बंद था। फिर रोशनी कैसे? मैंने वक्त देखा, 11:07। मैं गाड़ी से निकला। चौकीदार रशीद अपनी कुर्सी पर नहीं था, उसकी चाय का कप रखा था, अभी गर्म, यानी वो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ था। लिफ्ट के पास पहुंचा तो डिस्प्ले खुद ब खुद 7 पर आ गया। मैंने बटन नहीं दबाया था। लिफ्ट नीचे आई, दरवाज़ा खुला, अंदर मुकम्मल खाली। मैं अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट बंद हुई। मैंने कोई बटन नहीं दबाया। लिफ्ट खुद ऊपर चल पड़ी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। 7th फ्लोर, डंग। दरवाज़ा खुला। फ्लोर की लाइट्स मध्यम थी, इमरजेंसी मोड में जैसी रोशनी। फ्लैट 704 का दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने चाबी इस्तेमाल नहीं की। अंदर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, पानी टपकने की आवाज़, टिप टिप टिप। मैं अंदर दाखिल हुआ। हाल में वही नमक का गोल दायरा मुकम्मल बन चुका था। दरमियान में एक स्टील का बड़ा तश्त रखा था और इसमें पानी भरा हुआ था। पानी के ऊपर कुछ तैर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। वो एक फ़ोटो थी, वकास की, गीली, आधी डूबी हुई। इसके माथे पर मार्कर से लिखा था, कबूल है। मेरा सांस रुक गया। इसी लम्हे मास्टर बेडरूम से आवाज़ आई, किसी के कदम, नंगे पाँव, फर्श पर रगड़ की हल्की आवाज़। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। अंदर कोई खड़ा था, पीठ मेरी तरफ, सफ़ेद कपड़ों में, बाल कंधों तक। मैं चंद कदम रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा। ये वकास था, लेकिन नहीं था। इसका चेहरा बिल्कुल खुश्क था, होंठ फटे हुए, आंखें अंदर धंसी हुई।
जैसे जिस्म से सारा पानी निकाल लिया गया हो। वो मुझे देख रहा था मगर आंखों में पहचान नहीं थी। मैं पीछे हटा। ये क्या है? तुम जिंदा हो? इसके होंठ हिले। आवाज बहुत खुश्क। देर हो गई और वो सीधा मेरे सामने गिर गया, जमीन पर बेहिस। मैं फौरन इसके पास झुका, नब्ज चेक की, बहुत कमजोर लेकिन मौजूद। मैंने फौरन 15 पर कॉल की। 5 मिनट के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस आ गई। वकास को अस्पताल ले जाया गया और मैं वहीं खड़ा रहा, फ्लैट 704 के अंदर। पुलिस ने पूरा फ्लैट सील कर दिया। नमक का दायरा, पानी वाला तश्त, फोटो सब कुछ मौजूद था, लेकिन सीसीटीवी, इस बार कैमरे काम कर रहे थे और रिकॉर्डिंग में मैं अकेला ऊपर गया था, कोई और नहीं। कोई रोशनी नहीं जली थी, कोई तश्त नहीं रखा गया था और सबसे खतरनाक बात, रिकॉर्डिंग के मुताबिक मैं फ्लैट के अंदर सिर्फ 2 मिनट रहा था, लेकिन हकीकत में मैं कम से कम 15 मिनट अंदर था। वक्त गायब था। इस रात 11:30 से 11:43 के दरमियान सीसीटीवी में सिर्फ एक फ्रेम फ्रीज है और इस फ्रेम में मेरे पीछे दरवाजे के शीशे में एक और साया नजर आ रहा है, लंबा और मेरे बहुत करीब खड़ा।